السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، کل رات میں فون کیا تھا؟ ہاں، کون صاحب بول رہے ہیں؟ آصف خان، کہاں سے؟ بھساول۔ اچھا، فرماؤ صاحب، کیا حکم ہے؟ یعقوب صاحب ہے کیا؟ میں اطہر حسین قادری بول رہا ہوں، ایم پی سرونج سے۔ ہاں، اچھا ہاں سر، میں نے بار اور خیریت ہے؟ اللہ کرم ہے، کچھ نوٹ کرا دو، بات چینل پہ ڈلوا دیں، کچھ بتانا ہو تو بتا دیں۔ ہاں، میں وہی بتانا چاہ رہا تھا، میں نے آپ کی گفتگو سنا یوٹیوب پر، ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی ہمیں بات سن کے۔ اچھا، اور یہ ہاں بہت خوشی ہوئی بہت، میں نے آپ کا ویڈیو سب جگہ ہمارے جتنے گروپ تھے سب جگہ وائرل کیا۔ ارے واہ، بہت اچھی شروعات ہے، اس کو تو بہت پہلے ہونا چاہیے تھا کیونکہ حالات کے مد نظر رکھتے ہوئے۔ ارے صاحب، اندور کے پارشدوں کو چاندی سے تول دینا چاہیے۔ بالکل بالکل، جتنا بڑا کام اندور کے پارشدوں نے کیا ہے نا۔ ہاں، جناب حضرت بالا بیگ صاحب جو تھے، یہ ایک بہت بڑے بابا تھے بڑود میں، بڑود والے بابا، میں گیا ہوں۔ اچھا، ان کے خاص وہ چاہنے والے تھے۔ ان کے بھی بھائی ہیں کوئی توفیق بیگ صاحب، وہ بھی یہ کام کر رہا ہے بتایا، اور انجو قریشی صاحب اندور کے۔ بالکل بہت اور اچھی بات ہے۔ بہت لوگ اندور کے اس معاملے میں آگے ہیں کہ مجاہد ملت حاجی محمود چشتی صاحب ہیں، چندن نگر اندور، اچھا، وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ بہت لوگ یہی کام چاہتے ہیں کہ سب ایک ہو کے رہے، بھلے ہی نماز تم اپنی اپنی الگ پڑھ لو کسی بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک ہو کے رہو، کیا خیال ہے؟ بس ہم ایک امت ہے، ایک حضور کی امت ہے، ایک قرآن کو ماننے والے، ایک اللہ کو ماننے والے، ایک آخری نبی کی امت ہے۔ بس کھلے عام تو کوئی گستاخی کر نہیں رہا ہے، کھلے عام کرے گا تو مار دیں گے اسے، مسلمان ہی مار دیں گے اس کو۔ گستاخی کرنے کا سوچنے والا بھی خالی خیال بھی لے کر آ گئے، کیا بات ہے، خیال بھی نہیں آتا، یہ بہت بڑی سازش رچی گئی، ہم لوگ اس کا شکار ہو گئے، ہم سمجھ نہیں پا رہے بات کو۔ یہ آپس میں لوگوں کو توڑنے کے لیے سب یہ کرنے کے لیے کیا گیا، جب تک امت میں توڑنے رہے گا تو سامنے والا حاوی تھوڑی رہے گا۔ ہاں، یہ رسی کا سانپ، بات کا بتنگڑ، رائی کا پہاڑ بنا کے نفرتیں پیدا کرتے تھے، غلط فہمی ڈالتے۔ بالکل، پھر ہمارے پاس میں اتنی بڑی روشن کتاب ہے، اگر ہم کو ایسے کوئی بات آتی ہے تو ہم اس کے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے۔ بے شک، اللہ کے رسول نے ہمارے پاس میں اتنا سب کچھ چھوڑ کے گئے، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے قرآن نازل کیا، اس میں ہر چیز کا واضح بیان کر دیا۔ بس کوئی کچھ بول رہا ہے اس سے مطلب نہیں نا، ہم اس میں تلاش کرو نا بھائی، پہلے قرآن میں پھر حدیث میں، دو صحیح حدیث میں تلاش کر لو، سب کچھ مل جائے گا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ قرآن حدیث کو سمجھا ہے صحابہ کرام نے، بے شک صحابہ کرام سے سمجھو، یہ آج کے مولویوں سے مت سمجھو، جو صحابہ نے سمجھ کے بتایا وہ بتاؤ۔ یہ کیوں بتا رہا ہو کہ وہ مولوی نے بتایا تفسیر، مولوی کی تفسیر نہیں سنی جائے گی، صحابہ کرام نے جو تفسیر کی ہے وہ بتاؤ، جو صحابہ کرام نے تفسیر بتائی ہے وہ بتاؤ۔ بے شک ہے کہ نہیں صاحب؟ بالکل یہ آج کل سب نے اپنی اپنی لکھ دی، مودودیوں نے اپنی لکھ دی، اہل حدیث نے اپنی لکھ دی۔ ارے بھائی، تم اپنی اپنی تفسیریں بتاؤ گے تو پھر پرانی تفسیر کو کون پڑھے گا؟ 150 سال پہلے کے علماء۔ بالکل ہم تو کہتے ہیں وہ تفسیریں بتاؤ جو دنیا مانتی ہے، شاہ عبد العزیز صاحب، شاہ ولی اللہ صاحب، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، ان کی کتابوں میں جو تفسیریں ہیں وہ بتاؤ۔ یہ کیا ہے کہ آج کے زمانے میں ان لوگوں نے اپنی اپنی تفسیریں بھی لکھ دی ہیں، اور ایک نے تو تفسیر میں لکھ دیا، تفسیر نعیمی میں اقتدار احمد یار خان نعیمی نے، کہ درود ابراہیمی پڑھنا نماز کے علاوہ منع ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک بہت اس میں جنت کا لفظ لکھا ہے، زبان پہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ یہ اس میں سلام نہیں ہے، صلاۃ ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ نبی پر خوب خوب صلاۃ و سلام بھیجو، تو یہ درود ابراہیمی میں سلام نہیں ہے، صلاۃ ہے، اس لیے اس کو نماز کے علاوہ پڑھنا اس نے منع لکھا، بہت سخت الفاظ میں لکھا صاحب، زبان پہ بھی نہیں لکھا۔ نہیں، وہ تو سب سے افضل درود ہے، الٹا ہے، سب سے افضل اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے۔ یہ تفسیر نعیمی، اب ایسی تفسیر پڑھیں گے جس میں درود پڑھنے کو منع کیا گیا ہے، تفسیر نعیمی ایسے پڑھیں گے تو دماغ خراب ہونا ہی ہے، پھر ایمانی ختم پھر تو تفسیر کا۔ اور وہ ایک الیاس قاضی ہے گا، وہ پاکستانی، وہ جانے کیا کیا حرکتیں کرتا ہے کہ انسانوں کو مدینہ کہہ کے بلواتے ہیں اس کے لوگ، وہ میٹھے میٹھے رسول کہلواتے ہیں، جبکہ یہ خود بہت میٹھا ہے الیاس قاضی، اس کی بیوی تو بہت ہی میٹھی ہے، اس کی بیٹی اور زیادہ میٹھی ہے، اس کی بہن تو اور زیادہ میٹھی ہے، ان کو میٹھا کہو، اس کی بیٹی کو میٹھا کہو، اس کی بیوی کو میٹھا کہو۔ بتاؤ، یہ میٹھا کبھی لفظ آپ نے سنا کسی عالم سے کہ اللہ کے رسول کو میٹھا میٹھا کہا ہو کسی عالم نے؟ میٹھا میٹھا، اور یہ عاشق کہنا بھی ایک حساب سے توہین ہے۔ عاشق کس کو بولتے ہیں؟ محبت، بولا محبت، محب رسول کہہ سکتے ہیں، محب رسول کہہ سکتے ہیں۔ عاشق کو بولے، وہ عاشق بولے تو مجنون اور اس میں آ جاتا ہے۔
मुहिब रसूल के लफ्ज़ हैं, मुहिब रसूल कह सकते हैं। मुहिब रसूल का लफ्ज़ सही रहता है, क्योंकि उसमें कुरान में है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, कह दीजिए ए हबीब कह दीजिए इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, तो मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह तुमसे खुद बखुद मोहब्बत फरमाएगा। क्या ख्याल है साहब आपने? और ये बहुत अच्छी बात है कि इंदौर के जो पार्षदों ने जो काम किया है ये सोने के हरूफ से लिखे जाने के लायक है। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने कह दिया, उन्होंने साफ कह दिया, बता रहे थे हाजी महमूद साहब कि हम नफरत नहीं होने देंगे यहाँ पर। यानी तुम तो ये बिहार से आकर, यूपी से आकर, मुरादाबाद से, रामपुर से, कोई फैजाबाद से, कोई बस्ती से, कोई भगवतपुर से आकर के इन्होंने अपनी जायदादें बना ली, प्रॉपर्टी बना ली और मुसलमानों को तकसीम कर दिया, ये वहाबी है, देवबंदी है, फलाना है, धमाका है। सही बात है। और हकीकत बताऊं, इन लोगों की खुद रिश्तेदारियां देवबंदियों में हैं, इन मौलवियों की। हाँ सही है। मालूम है ना, इंदौर में जितने मौलवी हैं इनकी रिश्तेदारियां हैं देवबंदियों में, है ना। आपको भी मालूम होगा, भुसावल में भी खूब रिश्तेदारियां होंगी आपस में एक दूसरे की, है ना। भुसावल में है, पर भुसावल में ऐसा माहौल नहीं है। अच्छा नहीं है भुसावल में क्या माहौल है, सब एक दूसरे से मिलते हैं? हाँ मिलते हैं, बिल्कुल। यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ पर जो काजी है वो भी अच्छे हमारे, और कोई मस्जिद में रोक टोक नहीं, किसके उगदे खाने में, पढ़ाने में, आने में, जाने में कोई मसला नहीं, सब अल्हम्दुलिल्लाह इधर का माहौल अच्छा है। अरे साहब यही अमरोहा का बताया था, कल अमरोहा से फोन आया था, उन्होंने भी यही बताया कि यहाँ पर किसी मस्जिद में कोई भी नमाज पढ़ लेता है, यहाँ कोई वो नहीं है अमरोहा में, कोई मसला नहीं है यहाँ पर तो हमारा। अच्छा यही आपके ये खरगोन की से फोन आया था, उन्होंने भी यही बात बताई कि खरगोन में साहब आप आगे देखोगे तो दिल खुश हो जाएगा, यहाँ कोई ऐसा क्या ना, हिंदुस्तान में खरगोन ऐसा जिला है, ऐसा कुछ बता रहे थे कि यहाँ भी ऐसा कुछ फफूंद नहीं है। एमपी में आता ना खरगोन? हाँ एमपी में, वहाँ भी ये फफूंद नहीं है साहब। नहीं, ये कुछ जगह है वहाँ से ज्यादा तूल पकड़ लिया और वो मैसेज वहाँ से माहौल खराब हो रहा है सब। हंसी में फफूंद फैलाई है ये नासिक वालों ने। हाँ, और ये फिर ये इंदौर में तो अभी आई है, बहुत ज्यादा बाद में आई है इंदौर में, वरना इंदौर में भी नहीं थी फफूंद। अच्छा उज्जैन से खत्म हो गई साहब फफूंद? हाँ, बहुत सी जगह खत्म हो रही है, अल्लाह उसको कामयाब करे। नहीं, रतलाम में थोड़ी सी बाकी है, वो भी खत्म हो जाएगी रतलाम में, इंदौर में ज्यादा थोड़ी अभी। नहीं, अच्छी कोशिश है, ये बहुत जरूरी है कि हालात आगे के बहुत खराब चल रहे हैं, होने वाले। अरे हमको कहना है कि तुम जिसके पीछे तुम्हारी नमाज किसी के पीछे नहीं हो रही, मत पढ़ो, अपनी अलग पढ़ो या अपने इमाम के पीछे पढ़ो, लेकिन मिल के रहो। पर वो सामने वाला तो आपके पीछे पढ़ने तैयार है ना, उसको मस्जिद में तो आने दो। उसको मस्जिद में तो आने दो, वो तो तुम्हारे पीछे पढ़ रहा, ये सही कही बात, वो तो आपके पीछे पढ़ने को तैयार है, तो पहले मस्जिद में उसको तो। हाँ, अगर कोई जमात लेके आए तो मत आने दो, मना कर दो, जमात नहीं आई, ठीक है भाई, आप किसी भी जमात को मत आने दो, या तो ये पाकिस्तानी अत्तारी इलियास काजी इसकी भी जमात को मत आने दो, इसकी जमात को क्या दे रहा है, उसने भी तो बहुत गुस्ताखी की है। सबको आने दो ना। नहीं, मैं तो कहूँ खाली नमाज पढ़ने आने दो, लेकिन डेरा किसी को मत जमाने दो मस्जिद में। नहीं, डेरा मत जमाने दो, नमाज तो पढ़ने दो, किसी को आने दो। नमाज के लिए मना नहीं करो, ये तो जुल्म हो जाएगा। कुरान में वमन अज़लम मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाह अन यज़कुर फी हस्मुहु व सआ फी खराबिहा। कुरान में अल्लाह ने फरमाया वमन अज़लम मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाह, जो अल्लाह की मस्जिदों में आने से मना करे, उससे बड़ा जालिम कौन होगा, ये बताइए आप। कुरान में अल्लाह ने फरमाया वमन अज़लम मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाह। और अगर यही बात जैसे ये इंदौर वाले कर रहे हैं, अगर यही मक्का शरीफ मदीने शरीफ के वहाँ के जो हुक्काम है वो करने लग जाए तो फिर आपके जमाने में ऐसा नहीं था ना। आप सल्लम के जमाने में मस्जिद नबी में हर काफिर मुशरिक सब आते थे, गए ईमान वाले आते थे, ईमान कबूल करते थे, तो सबका चलत फिरत था, सबका आना जाना था। हाँ बिल्कुल। नहीं, मैं कह रहा हूँ ऐसी नफरत अगर मक्का शरीफ मदीना शरीफ वाले पैदा कर दें, ये देखो, ये कहीं बरेली से तो नहीं आया, पीलीभीत से तो नहीं आया, हज करने वापस कर। तो फिर तो कोई हाजी ने उम्रा नहीं कर पाएगा, फिर तो उम्रा भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो क्यों नमाज ये बाद में पढ़ने जाते हैं, जमात नहीं कर पाएगा, आप सल्लम के रोजे की ज़ियारत नहीं कर पाएगा। हाँ, सल्लल्लाहु, पूरा दर्द पढ़ा करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सलाम कहना मना किया गया है, क्योंकि ये आजकल कुछ लोगों ने ऐसा शुरुआत कर दी है सलाम कहने की, तो वो पूरा दरूद ही पढ़ना चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये अगर अरब वाले काम शुरू कर दें कि 300 गेटों पे बैठ जाओ मस्जिद नबवी के, पूछो ये कहाँ से आए तुम, किसान बरेली से, तुम कहाँ से, इंदौर से, किसके मुरीद है तुम, फलाने, चलो निकलो बाहर निकलो, तुम वहाँ पर मुसलमानों को नफरत से दिलाते, अब यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है, मस्जिद नबवी नहीं, नमाज नहीं पढ़ोगे, आप अपने होटल में पढ़ो, जाओ यहाँ से वापस, चलो यहाँ से, जब तुम जमात से नहीं पढ़ते तो यहाँ को, यहाँ मस्जिद नबवी, चलो यहाँ से भागो, निकलो, भागो बाहर निकलो तुम।
और जब तुम इतने ही अच्छे थे तो तुम्हारे यहाँ इमाम होना चाहिए थे ना, मस्जिद नबवी में, हरम शरीफ में तुम्हारे इमाम होना थे। अल्लाह ताला ने तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं की, इसका मतलब तुम लोगों को अल्लाह पसंद नहीं फरमाता, तुम्हारा कोई इमाम नहीं है मक्का शरीफ मदीना शरीफ। सही है। और तुम 100 साल से क्या दुआ कर रहे हो कि तुम्हारी 100 साल से अल्लाह दुआ ही नहीं सुन रहा। तुम तो दुआ तो करते होगे कि अल्लाह हमारा इमाम दे दे यहाँ पर मस्जिद नबवी में, मक्के शरीफ में। तो तुम्हारे किसी भी मुल्ला मौलवी की एक की भी दुआ कबूल नहीं हुई 100 साल में, एक की भी नहीं हुई साहब कबूल। ये तो हो सकता है दुआ करते होंगे हुजूर के रोजे पे जाकर कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मसलक का इमाम नहीं है। तो 100 साल से दुआ ही कबूल नहीं हो रही, एक की नहीं लाखों की। बिल्कुल बिल्कुल सही। इसका मतलब तुम हक पर नहीं हो, साफ साफ क्लियर हो रहा है कि हक पर नहीं हो कि न तो तुम्हारा मक्का शरीफ में इमाम है, न मदीना शरीफ में इमाम है, बल्कि इमाम ही नहीं मुअज्जिन तक नहीं है इनका वहाँ। मुअज्जिन तो बहुत बड़ी बात हो गई, झाड़ू देने वाले तक नहीं है इनका वहाँ। हाँ सही है। यानी ये लोगों की हालत हो गई कि इनका वहाँ पर कोई गुजर नहीं है साहब, मक्का शरीफ मदीना शरीफ में बिल्कुल नहीं है, बहुत सख्ती है वहाँ पर। अगर इनकी कोई किताब देख लेते हैं तो फौरन जब्त कर लेंगे वो लोग। अरे वो तौहीद परस्त आदमी है, सबसे पहला दीना तो तौहीद है साहब, ईमान का। तौहीद की बुनियाद पे सब कुछ मिलने वाला है, कुरान में है। आप सलाम ने दावत दी, तौहीद की दावत दी। हजरत बिलाल ने जो तकलीफ बर्दाश्त की काय के लिए की, तौहीद के नाम पर तो बर्दाश्त की। आज पकड़ पकड़ के हमको बोल रहे जय श्री राम बोलो, नारे लगाओ, मैं तो मरो। आज क्या हाल चल रहा है, मुसलमान रहेगा कमजोर तो पढ़ लेगा, उल्टा हो गया, पढ़ लेगा। हाँ बताइए आप। जब तौहीद का नाम है नहीं, तौहीद से इन्होंने दूर कर दिया बरेली वालों ने हर जगह। तो हुआ वो तौहीद को हटा करना ये इसमें लगा दिए, तो उससे क्या होगा, ईमान की कमजोरी आ गई बस। ये हर जगह एक तो इन लोगों ने ये कुरान के मतलब गलत बतला है, पब्लिक को ये बता दिया जलसों में। बड़े इंटरनेशनल एक मौलवी बता रहा था, मैं खुद सुन रहा तकरीर, कहने देखो कुरान में आया है यानी वलियों से मदद मांग सकते हैं, दलील दे रहा। दलील क्या दे रहा है, ये सूरह बकरा की आयत की दूसरे पर, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह कहता है। अब मतलब बताता है, कहता है कि अल्लाह ने फरमाया कि ईमान वालों नमाज से सब्र से मदद मांगो। पब्लिक को समझा रहा। पब्लिक इतनी बेवकूफ है कि कुछ पूछती नहीं है, बेचारी अंधी बेरी बन के बैठ जाती है। कहती है, वो कह रहा है कि देखो अल्लाह ने कहा है कि नमाज से सब्र से मदद मांगो, तो नमाज भी गैरुल्लाह है, सब्र भी गैरुल्लाह है, तो हम वलियों से ही मदद मांग सकते हैं जब नमाज से अल्लाह ने मदद मांगने को कहा है। तो मैंने कहा कि पब्लिक को चाहिए खड़ा होकर उस आलिम से अदब से सवाल करें कि आलिम साहब आपने अभी आयत का मतलब ये होता है कि गैरुल्लाह से मदद मांग सकते हैं ना? वो कहे हाँ बेशक, मैंने अभी तो बताया कि अल्लाह ने कहा है। तो आलिम साहब सबको इजाजत दे दो जितने बैठे हैं, हम कोई आपसे बदतमीजी नहीं कर रहे कि क्या इजाजत दें, ये इजाजत दे दो जितने लोग हैं अभी इस तरह से मदद मांगे अल्लाह के फरमान पे अमल करके कि या नमाज अल मदद या सबर अल मदद, एक तस्बीह की रोजाना पढ़ा करें सुबह शाम। अरे भाई कैसे आदमी हो आप? अरे तू कैसा आलिम है? हमने तो सही हो, तूने तो कहा भी अल्लाह ने कहा, तू अल्लाह के फरमान पे एतराज कर रहा, तू साले बदमाश है, तू हमें उल्लू बना रहा है। तो मतलब गलत निकाल लिया ना। मतलब हम तो कह रहे हैं तुझसे कि अल्लाह ने कहा तो फिर तो मदद मांगनी चाहिए नमाज से, या नमाज अल मदद, अल्लाह के फरमान पे अमल करें, सब लोग अमल करें जितने बैठे हैं। आप बता के जाओ, इजाजत दो कि हाँ ऐसे पढ़ सकते हैं, या नमाज अल मदद या सबर अल मदद। अरे नहीं भाई तुम तो गुमराह हो, तू खुद गुमराह है, तू गुमराह कर रहा है, मैं कहाँ गुमराह हूँ? अभी तूने कहा है कि अल्लाह ने कहा है और अब तू खुद ही मुनकर, अब तू खुद ही इनकार कर रहा है। इसका मतलब तू खुद गुमराह कर रहा है हम लोगों को, मुसलमानों को। अरे भाई ये मतलब नहीं है इस आयत का। अरे तूने अभी बताया है कि अल्लाह ने कहा नमाज से मदद मांगो, सबर से मदद मांगो, तो कैसे मदद मांगेंगे? ऐसे ही तो मांगेंगे ना, या नमाज अल मदद या सबर अल मदद। अरे भाई ये मतलब नहीं, तो क्या मतलब है बता दो, तू बता क्या मतलब है कि तू बता किसके लिए नमाज किसके लिए पढ़ी जाती है? आलिम के अल्लाह के लिए, सबर के अल्लाह के लिए, क्या मतलब होगा इस आयत का? कि तूने कंजुल ईमान भी नहीं पढ़ा, उसमें साहब लिखा है मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने कि यहाँ इस्तिआनत से मुराद ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमाने में जब कोई सख्त मामला पेश आता तो अल्लाह के रसूल नमाज में मशगूल हो जाते। ये कंजुल ईमान भी लिखा है फाजिल बरेली की, और तकलीफों पे सबर करते हैं, तकलीफों पे सबर बर्दाश्त करते हैं। साहब लिखा है कि यहाँ इस्तिआनत से मुराद नमाज इस्तिस्का सलात हाजत दाखिल है। और ये कैसे घुमा रहा पब्लिक को कि वलियों से मदद मांगो, अल्लाह ने फरमाया। बताइए अब इससे पूछो भाई नमाज किसके लिए पढ़ी जाती है? कहेगा अल्लाह के लिए। तो कहना क्या मतलब हुआ भाई? इस आयत का मतलब है कि नमाज पढ़कर सब्र के जरिए से अल्लाह से मदद मांगो। और बेवकूफ बना रहा तू के साहब हो। एक तो कह रहा है कि कुरान में आया जिब्रील अलैहिस्सलाम भी मददगार है, तो है ही बेशक, इसमें कोई शक नहीं। कुरान की आयत फइन्नल्लाहु मौलाहु जिब्रील और सालिहुल मुमिनीन, बेशक अल्लाह भी मददगार है, जिब्रील इस्लाम भी, नेक और फरिश्ते भी और नेक लोग भी। तो कह रहा है कि ये कुरान में है, देखो जिब्रील इस्लाम गैरुल्लाह है, वो भी मददगार हैं। तो मैंने कहा ठीक है, जब वो तकरीर करे तो उससे कहो इमाम साहब, आलिम साहब,
کہ ایسا ہے اب آپ اجازت دو ہم یا جبریل المدد کہا کریں ہم سب لوگ مسلمان، عورتیں بھی کہا کریں یا جبریل المدد، قرآن میں آیا ہے، قرآن میں ہے امام صاحب۔ وہ کہ ارے یہ کیا بتا، ارے کیسی بات نہیں، سب کے سامنے آپ نے کہا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا جبریل السلام بھی مددگار ہے، میں بھی ہوں، جبریل السلام بھی، فرشتے بھی، قرآن میں ہے تو ماننا پڑے گا۔ اور آپ اجازت دو عورتیں بھی گھر میں جا کے پڑھیں گی یا جبریل المدد، اور ہم مرد لوگ یہاں پڑھیں گے یا جبریل علیہ السلام المدد۔ بالکل بالکل کہ بھائی یہ مطلب تھوڑی ہے، کیا مطلب ہے؟ ابھی تو کہہ رہا ہے کہ اللہ بھی مددگار، جبریل السلام بھی، اور مطلب تو ولیوں کے اوپر لے جانا چاہ رہا ہے کہ ولی بھی مددگار ہے۔ ہاں کہ نا اس آیت کا شان نزول بھی تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے رسول پر ہی پورا قرآن نازل ہوا، اس موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے مدد کے لیے تشریف لاتے تھے۔ بے شک اب تھوڑی آئیں گے حضرت جبریل علیہ السلام، بس یہ لکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک بار پوچھا کہ جبریل میرے پاس۔ ماشاء اللہ آپ کا تفسیر قرآن بھی اور یہ بھی بہت اچھا لگا مجھے، اور آپ کا نالج بھی بہت بڑھیا ہے۔ بس ایسی عالم کی ضرورت ہے ہمارے کو ادھر معاشرے کے اندر۔ آپ اپنی بات کو قائم رکھیے، اور جو بھی سوشل میڈیا کا استعمال آپ بہت اچھا کر رہے ہیں، امت میں جوڑ پیدا کرنے کا۔ دیکھو کوئی بھی منع نہیں کرتا، لیکن اولیاء اللہ کے مزار پہ جائے تو شرعی طریقے سے جائے، اللہ ہی سے۔ ہاں وہ تو جانا جائز ہے نا، جاؤ اپنے جا کے جاؤ، لیکن ان سے مانگو مت ڈائریکٹ، اللہ ہی سے مانگو، نیک اعمال کے وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں، بخاری شریف میں ہے۔ ہاں بس وہ کر سکتے ہیں، ہاں نیک اعمال کے وسیلے سے، لیکن دعا صرف اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ قرآن میں ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو، اللہ نے سب فرمایا مجھ سے مانگو۔ اور قرآن میں علیہ اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں؟ اب یہ دور والے کو تو پکار رہے ہیں، جیسے یا غوث المدد، دور سے یہاں سے پکار رہے ہیں یا غوث المدد، لیکن قریب والے کو نہیں پکار رہا ہے۔ اللہ فرماتا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہاری گردن کی رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہم تمہاری گردن کی رگ سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ سے مدد نہیں مانگنا چاہ رہے، نہیں ہم تو ولیوں سے ہی مانگیں گے۔ اللہ جب ولیوں سے ہی مدد مانگنا ہے تو پھر ایسا ہے، پھر ساری زندگی ولیوں سے ہی مدد مانگو، اب اللہ سے مت مانگو۔ نماز کا سلام پھیرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یا بڑے پیر صاحب المدد یا ولی اللہ المدد، بس یہی کہتے رہو نماز کے بعد بھی۔ کوئی فائدہ نہیں نا، پوری عبادت تو رائے گا چلی جائے گی پوری زندگی۔ جو ولی مدد کرتے ہیں پوری دنیا میں لاکھوں ولی ہیں، تو پھر سب سے ہی مدد مانگو، ایک ایک کر کے، آج ان سے مانگو، کل ان سے مانگو، پرسوں سے مانگو۔ ولی اتنے ہیں کہ لاکھوں ولی تمہاری مدد کریں گے، تو پھر اللہ سے کیوں مانگ رہا؟ میرا تو ایک سوال ہے، مت مانگو اللہ سے۔ پھر ہر نماز کے بعد ولیوں نے ایسی تعلیم نہیں دیکھی گئی نا، ولیوں نے تھوڑی بول کے کہ ہم سے مانگو۔ ولی تو جتنے بھی تھے سب اللہ ہی سے مانگتے تھے صاحب، جتنے بھی ولی تھے۔ بڑے پیر صاحب کی آپ کتاب پڑھو، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کتنی سخت الفاظ میں لکھا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اسے مسلمانوں کو قبرستان میں دفن مت کرو۔ آپ کی کتاب ہے بنیاد الطالبین، وہ بہت اچھی لکھی ہوئی ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے۔ غضب کی کتاب ہے صاحب، اس میں بہت سب لکھ دیا آپ نے، سب لکھ دیا، کے اوپر کتاب ہے پوری، وہ توحید پہ توحید، شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت سب بیان کیا اس میں، اس میں بیان کیا۔ وہ اس کو بریلوی نہیں مانتے، بڑے پیر صاحب کی کتاب کو، دکان چلانے کا دکان بندنے ہونا چاہیے، ان کے مطلب کی نہیں ہے نا، یہ ان کے مطلب کی نہیں ہے بریلویوں کی، تو بڑے یہ نہیں مانتے بریلوی اس کتاب کو، طالبین کو، بڑے پیر صاحب کی کتاب کو نہیں مانتے۔ ان کو مانتے، بس پیر صاحب کو مانتے، بڑے پیر کو، اور ان کی کتاب کو نہیں مانتے۔ سوچتے نا کہ ہمارے مطلب کی باتیں نہیں ہیں اس میں، توحید کی باتیں ہیں اس میں، حقائق بیان کی ہیں حضرت نے۔ بالکل بالکل۔ اب دیکھو بڑے پیر صاحب میں کہتا ہوں 5ویں صدی ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، اور یہ کہتے ہیں یا غوث المدد کہہ سکتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے تمہارے حساب سے کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ بتاؤ کہ بڑے پیر صاحب تو 5ویں صدی میں پیدا ہوئے ہیں، 470 ہجری میں، 470 ہجری میں، تو اب یہ بتاؤ کہ بڑے پیر صاحب کس سے مدد مانگتے تھے؟ اور بڑے پیر صاحب جب پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے کے مسلمان صحابہ کرام، تابعین، طبی تابعین، جو 400 سال تک مسلمان تھے، وہ کس سے مدد مانگتے؟ کس سے؟ بے شک، بہت اچھا پوائنٹ ہے۔ اور بڑے پیر صاحب جب پیدا نہیں ہوئے تھے، جب کس سے لوگ مدد مانگتے تھے؟ 400 سال تو ہو گئے نا مسلمانوں کو زمانے میں، صحابہ کرام سے لے کے بڑے پیر صاحب کو 400 سال کا عرصہ ہو گیا تھا۔ اور اس سے پہلے مسلمان، کبھی ان مسلمانوں نے، ان سے پہلے کے مسلمانوں نے یا ابو بکر المدد کہا ہو تو بتاؤ، چیلنج ہمیں، کسی بھی کتاب میں لکھا بتا دو، یا ابو بکر المدد کوئی کہتا ہو، یا عمر المدد کہتا ہو، یا عثمان المدد، یا علی المدد، کسی بھی ولی نے یا کسی بھی عالم نے کہا اس زمانے کی کتاب میں لکھا بتاؤ، جو مکمل اس زمانے کے ولیوں کی لکھی ہوئی کتابیں، یہ آج کے زمانے کی نہیں۔ کیا خیال ہے صاحب؟ بالکل صحیح بات ہے۔ کیا معلوم ان لوگوں نے کیوں اللہ سے دور کر رکھا ہے، بس اللہ سے مانگ نہیں چاہتے، اللہ کو انہوں نے اوپر سے بھی غائب کر دیا ہے صاحب، آسمان سے بھی۔ اگر آپ نے کہہ دیا اللہ وہ اوپر والا جانے، تو کہیں گے نہیں آپ نے کفر کیا، یہ اوپر والا آپ نہیں کہہ سکتے، یہ اللہ کے لیے آپ نے مکان فکس کر دیا اوپر۔
अरे भाई तो फिर क्या कहो कि ये अगर आपने कह दिया अल्लाह हर जगह हाजिर नाजिर है, नहीं ये कुफ्र किया, अल्लाह हाजिर नाजिर नहीं है। अरे क्या मतलब है भाई, हाजिर नाजिर क्यों नहीं कह सकते? नहीं, हाजिर कहते हैं जिस्म के साथ हाजिर होना, अल्लाह जिस्म से पाक है। नाजिर कहते हैं जिस्मानी नजर रखना, अल्लाह नजर से पाक है। तो ले अल्लाह को इन्होंने ऊपर से भी गायब कर दिया बरेलवियों ने, नीचे से भी गायब कर दिया। कहते हैं कि अल्लाह को बस समी और बसीर, शहीद और बसीर कहो, लेकिन हाजिर नाजिर न कहो। अरे भाई हाजिर नाजिर कोई भी बंदा कहता है तो ये नियत थोड़ी होती है कि अल्लाह का जिस्म मान रहा है। कोई भी मुसलमान नहीं मानते जिस्म अल्लाह पाक का। नहीं कोई नहीं मानता, कोई नहीं मानते। ये तो बेवकूफ बनाते हैं कि ये हाजिर के माने जिस्मानी जिस्म रखना हाजिर, ऐसा कौन अकीदा रखता है साहब? अल्लाह ताला आयतल कुर्सी में फरमा रहा है, कुल अल्लाह आद में फरमा रहा है, अपनी सिफत बयान कर दे अल्लाह ताला ने आयतल कुर्सी में और उसमें कुल अल्लाह में आद में कि मेरी कोई औलाद नहीं है, मैं तने तना हो, ना मुझे ऊँघ आती है ना मुझे नींद आती है। तो अल्लाह को जिस्म है ही नहीं। अरे साहब ये तो जाने क्या क्या मतलब निकालते हैं। कहते हैं कि अल्लाह हाजिर नाजिर नहीं है, अल्लाह के रसूल हर जगह हाजिर नाजिर हैं, ये कहते हैं। ये उल्टा कर दिया उसको, मीनिंग में बदल दिया। यानी इन्होंने अल्लाह को ऊपर से भी गायब किया और अल्लाह को नीचे से भी गायब किया और शहीद और बसीर का मतलब समझाकर और ये बताया कि नहीं अल्लाह के रसूल हाजिर नाजिर हैं। फिर कहते हैं हाजिर जिस्म के साथ हाजिर होना, तो फिर अल्लाह के रसूल को हाजिर नाजिर भी मान रहे हैं और सिगरेटें भी पी रहे हैं, बीड़ियां भी पी रहे हैं, हुक्के भी पी रहे हैं। अल्लाह के रसूल के सामने लोग कुर्सी पे बैठ के गप्पे मार रहे हैं, मुसलमानों की बुराइयां कर रहे हैं, काफिर बना रहे हैं एक दूसरे को। वो कह रहे हैं कि ये अकीदा रख रहे हैं कि अल्लाह के रसूल हाजिर नाजिर, तो फिर तुम कुर्सी पे बैठ के तकरीर क्यों कर रहे हो? और सिगरेटें क्यों पी रहे हो, फिर बीड़ियां क्यों पी रहे हो, हुक्के क्यों पी रहे हो, बड़ी बड़ी आवाजों में बातें क्यों कर रहे हो, गालियां क्यों दे रहे हो खूब तेज तेज? सही बात है। कैसी कैसी बातें कर रहे हैं साहब। कुरान में तो अल्लाह ने फरमाया इन्नल लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाह। साहब किराम को अल्लाह ने अदब सिखाया कि अल्लाह के रसूल के पास जाओ तो बहुत पस्त आवाज में बात करना, अल्लाह ने फरमाया कुरान में इन्नल लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाह। अल्लाह के रसूल के सामने अपनी आवाजों को पस्त रखना, ये अल्लाह ने कुरान में फरमाया है। बेशक सही बात है। और ये अल्लाह के रसूल के सामने मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल हाजिर नाजिर है, काफिर बना रहे हैं देवबंद वालों को, कहीं किसी को खूब गालियां दे रहा है, हुक्के भी पी रहे हैं, बीड़ियां भी पी रहे हैं। और अपने बाप के सामने बीड़ी नहीं पिएगा बरेलवी, सिगरेट नहीं पिएगा, हुक्का नहीं पिएगा। बल्कि आपने भी देखा होगा अगर आपका दोस्त कोई सिगरेट पीता है उसे बता दिया यार तेरा बाप आ गया, तो वो जल्दी आके कुल्ली करेगा और धुआं भी उड़ाता है, कमरे से उड़ाता है कि नहीं? डर के यार धुआं भगा दो, जल्दी से निकाल दो, धुआं कुल्ली करके आगा। और ये अकीदा रख रहा है बरेली के हुजूर हाजिर नाजिर हैं और खूब सिगरेटें पी रहा, खूब हुक्के पी रहा, खूब बीड़ियां पी रहा था। कैसा इन्होंने मुसलमानों को गुमराह किया था। वैसा आप रहने को कहाँ पर है हज़रत? हम तो सिरोंज जिला विदिशा MP में रहते हैं, मध्य प्रदेश। अच्छा बढ़िया है। तो आप तो माशाल्लाह भुसावल में लगे रहे हैं और जो जिससे बस इतना हो कि पहले नंबर पे तौहीद है, दूसरे नंबर पे हुजूर की मोहब्बत है और इत्तिबा रसूल है। इश्क का लफ्ज कहीं कहीं मिल जाता है किताबों में, उसमें कोई इतना वो नहीं है। खैर नियत वो तो जिसको की बात है मोहब्बत बतानी है। हाँ लेकिन वो मोहब्ब रसूल का है तो वो भी ठीक है। और इसके रसूल के ऊपर कुछ लफ्ज मिल जाते हैं औलिया किराम की बड़ी बड़े आलिमों की अच्छी बात है, वो कोई इतना पॉइंट नहीं। खैर वो इतना कोई इतना खास वो नहीं है। तो अहले हदीस ने ये इशू उठाया था, अहले हदीस ने। तो अहले हदीस तो जो है कि साहब ये तो किसी भी सही हदीस को भी नहीं मानता जल्दी। ये तो वो क्या है, ये 100 साल पहले की जमात की गई हो अहले हदीस को। हाँ ये तो बहुत खतरनाक जमात। बस 1400 साल पहले वाली जमात को मान लो अहले सुन्नत वल जमात। हमने बस कायम करके उस पर कायम रहो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा दुरूद पढ़ा करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि इसमें ये सख्त लिखा है किताब में, मौलाना थानवी साहब ने दादू सईद में लिखा है कि जिसने सबसे पहले सलाम कहा तो अल्लाह ने उसका हाथ गला दिया था, हाथी बेकार हो गया था। तो आपने मुफक्किर इस्लाम कब्र उनकी किताब पढ़ना, हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह, जो उन्होंने अलक़रातुर राशिदा लिखी है और भी लिखी है कसरत किताबें। तो उसमें पूरा दुरूद लिखते हैं वो, यानी हर जगह पूरा दुरूद लिखते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक। तो इससे बरकतें हासिल होती हैं और जो है कि हमें फायदा भी है, बरकतें भी हासिल होंगी। ये आपने सही कहा कि अहले सुन्नत वल जमात जो 1400 साल वाली जमात है, हम तो उसी में है, बस उसी में हम लोग हैं। हम उसी की दावत देते हैं सभी को, भाई उस पर कायम रहो, आपने देखा हो बरेलवियों को एक हदीस बहुत अच्छी तरह याद है
کہ हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे, उसको ये बहुत अच्छी तरह याद है हदीस। अब इससे पूछ के तू 5 टाइम की नमाज तो नहीं पढ़ रहा, जुमा पढ़ रहा, तू कहाँ जाएगा? तू क्या जन्नत में जाएगा? नहीं। अरे कुरान में जिन्होंने नमाजें बर्बाद की, अल्लाह फरमाता है वत्तबाउ शहवात नफ्सानी ख्वाहिशात में मुब्तला हो गए। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है फसब यल्कौना गय्या, हम उनको डाल देंगे गई में जो जहन्नम के अंदर सबसे नीचे है। तो इसको ये कुरान तो समझ में ही नहीं आता, ना इसको लोग समझाते। भाई एक हदीस बता देते 73 फिरके होंगे, हुजूर ने फरमाया, वो तो बेशक हुजूर ने फरमाया, लेकिन क्या तू जन्नत में जाएगा नमाज छोड़ के? 5 टाइम की नमाज पढ़ नहीं रहा, जुमा पढ़ रहा, ये जन्नत में जाएगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसने जानबूझकर एक नमाज छोड़ दी उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। और हदीस है मन तरका सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, हुजूर ने फरमाया जिसने जानबूझकर एक नमाज छोड़ दी बेशक उसने कुफ्र किया। अब ये हदीस नहीं बताएगा, ये मौलवी 73 फिरके होंगे यही बताएगा एक। तो इन्हें सभी हदीसें बताओ ना, सभी बताओ ना कि नमाज कज़ा करने पे कितनी सख्त वईद है। तो ये क्या कहता है, नहीं वो कुफ्र के करीब हो गया। तो इसे कह रहे ठीक है चलो कुफ्र के करीब हो गया, क्या ऐसे कम गुना समझा तू? एक नमाज छोड़ने में कुफ्र के करीब हो गया तो इसे क्या तू हल्का समझा है? और अगर नहीं साहब मतलब एक कुफ्र के करीब हो गया, तो हदीस में तो नहीं है लफ्ज़ करीब हो गया, हदीस में साफ साफ है कि कुफ्र किया उसने, जिसने नमाज छोड़ी उसने कुफ्र किया। अगर तेरा बताया हुआ मतलब भी मान ले करीब हो गया तो ऐसा ही मतलब तू 73 फिरकों वाली हदीस जिसमें जिक्र है 73 फिरके होंगे, उस हदीस का मतलब सही तरह से क्यों नहीं बताता तू? यानी अब ये कहता है कि नहीं करीब हो गया कुफ्र के, चल तेरा ही बताया मतलब मान ले, तो कहना भाई एक नमाज छोड़ने में हुआ ना, जो रात दिन 5 टाइम की नमाज छोड़ रहा है वो क्या हुआ? तो पहुंच गया ना फिर कुफ्र में। हाँ फिर तो गया ना, जब एक नमाज छोड़े करीब हो गया, तू ही खुद मान रहा है इसका मतलब, तो फिर जो रात दिन 5 टाइम की नमाज छोड़ रहा है, जुमा पढ़ रहा है, वो क्या हुआ? है साहब सही बात है। तो ये लोग हदीस का मतलब भी जने कहाँ से कहाँ बता देते हैं कि हुजूर ने फरमाया 73 फिरके होंगे 72 जहन्नम में जाएंगे। तो हुजूर ने थोड़ी फरमाया देवबंदी जहन्नम में जाएंगे, हुजूर ने थोड़ी फरमाया बरेलवी जहन्नम में जाएंगे, अल्लाह के रसूल ने थोड़ी फरमाया नदवी जहन्नम में जाएंगे। ये कैसे कह दिया इसने के साथ ये जहन्नम में जाएंगे, यही जन्नत में जाएगा? ये गुलाम गिलानी जन्नत में जाएगा जो खंडवा में लोडियाबाजी करते रहे, ये जन्नत में जाएगा। वो हम्माद रज़ा मुरादाबादी फरिश्ते को लंगड़ा बता रहा है, वो जन्नत में जाएगा। वो हम्माद रज़ा मुरादाबादी कह रहा सारे सैयद इमाम हुसैन अस्सलाम, इमाम हसन अस्सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो है कि क़यामत में आला हज़रत को ढूंढेंगे, वो जन्नत में जाएगा। ये हम्माद रज़ा मुरादाबादी। और इलियास काजी अपने बाल को बाल मुबारक के बंटवारा है पाकिस्तानी, ये जन्नत में जाएगा है? ये अपने बाल को बाल मुबारक के बंटवारा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की जगह इसने तलबिया बदल दी। इलियास काजी ने लब्बैक अत्तार के नारे लगवा रहा है, ये पाकिस्तानी इलियास, मालूम होगा ना आपको, दावत इस्लामी वाला। सही। और इसने कहा मदनी चैनल जो देखेगा जन्नत में जाएगा। ये मेरे पास किताब है उसमें लिखा हुआ है, जो मदनी चैनल देखे जन्नत में जाएगा। यानी अब टीवियां खरीद के लाओ, मदनी चैनल देखो इसका। एक दलाल को 50,000 रुपए दे रहा है, दुनिया में कई लाख दलाल हैं। अब क्या मालूम उसके बाद कहाँ से इतना पैसा आ रहा है, लेकिन बरेलवियों ने तो आंखें बंद कर ली कि हमें इलियास काजी को मानना है, इसलिए कि ये आला हजरत का नाम लेता है। तो आला हजरत का नाम लेने से सारे गुनाह, सारे कुफ्र शिर्क सब के सब माफ हो जाते हैं। आला हजरत का नाम ले लो सब माफ हो जाएगा। सही बात है। ये कौन सा फार्मूला इन्होंने अपनाया कि आला हजरत को मान ले तो सारे गुनाह माफ? क्या है वो कुछ भी करे, और देवबंदी जरा सा कुछ करे या कोई दूसरा करे तो वो इनके लिए बहुत बड़ा गुनाह हो जाता है, कुफ्र हो जाता है। अभी आप क्या करते फिर आजकल? हमारी तो खेती बाड़ी है, सब घर में जमीन है। अच्छा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप तो औलिया अल्लाह को ही मानो और आपने एक बना लिया फार्मूला। 1400 साल वाला दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ के गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उस पर कायम रहो, कपड़े के बहुत बटो, उम्मत में तोड़ पैदा मत करो बस। ये अहले हदीस तो बहुत ही खतरनाक फिरका है, ये तो किसी भी सही हदीस को भी नहीं मानता, जो इनके मतलब के मुताबिक हो ना उन्हें मानता बस अहले हदीस। अहले हदीस पे गौर करना कि ये करामत तो करामत ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजिज़ात को भी नहीं मानता है अहले हदीस फिरका। नहीं वो तो उनको कौन मान रहा हो, वो गिने चुने लोग है, वो गिने चुने बहुत ही खतरनाक है, बहुत खतरनाक फिरका है। हाँ बहुत खतरनाक। ये अपनी बहन बेटियों को कॉलेज भेजेगा, स्कूल भेजेगा, दूसरों से कहेगा कि ये हदीस में कहा लिखा। तू बता ये हदीस में कहा है कॉलेज में भेजना लड़कियों को जवान सबकी पढ़ती है हदीस की भी, देवबंदी बरेली। अंग्रेजों के पैदा किया हुआ फिरका है वो अहले हदीस। हाँ, और अंग्रेजों ने बनाया वो मुसलमानों में तोड़ पैदा करने के लिए, शॉर्टकट वालों के लिए बनाया हो। नहीं तुम ये मत करो, दूसरा करो, तो आजकल के नौजवानों को वही पसंद आ रहा है। ये बहुत अच्छा लग रहा है शॉर्टकट वाला दीन।
और दूसरा अहले हदीस बनाए। दूसरा ये खतरनाक फरका ये इलियास काजी का तालिया फरका है। हाँ, ये ईमान को बर्बाद करता है धीरे धीरे, पहले अच्छे काम कराता है फिर ईमान पर हमला करता है। ये इसने लेटरिन के दरवाजे हरे किए साहब, मुझे मालूम है भरूच में किए, कोटा में किए, लेटरिन के दरवाजे हरे, लोटे हरे। और नाटक के तौर पे इलियास काजी कहता है कि मेरा बस चलता तो मैं हरी घास पर नहीं चलता। तो हरी सब्जियां क्यों खाता है? अपने साथियों को मना करे कि हरी सब्जी आज से नहीं खाओगे। और हरी घास पर नहीं चलता ये कहकर इसने अल्लाह ताला की तरफ ये बात ये बताई अल्लाह ताला को ऊपर से पर्दा के या अल्लाह तूने हरी घास पैदा कर दी, हम तो मजबूरन चलते हैं, तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े शरीफ का रंग हरा है। यानी ये ओवर एक्टिंग कर रहा है कि मैं बहुत बड़ा आशिक रसूल हूँ इलियास काजी। बता रहा है। हाँ, सही बात है। और करामत इसकी आपको देखो इतनी मिलेंगी कि पूरी दुनिया में आज तक किसी वली की इतनी करामतें नहीं हुई जिसकी इलियास काजी। वो मरने के बाद में सबसे बड़ा वली बन जाएगा, आप देखो जरा। नहीं, अभी बन चुका, बनने की बात क्या बनेगा, बन चुका, अभी बन चुका, पर मरने बाद में ज्यादा अकीदत पैदा कर देंगे लोग। वो तो अभी इसकी बात में जो आम हो रही थी ना, अपने बाल को बाल मुबारक के बंटवा रहा था और भी जाने क्या क्या, ये तो ये सोशल मीडिया के जमाने में बातें उठी तो बंद कर दी, नहीं तो अब तक तो जाने क्या क्या करते हैं ये लोग। अब तक तो ये भी हो जाता है कि ये वुजू बनाता है तो जैसे साहबा किराम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वुजू का पानी नीचे नहीं गिरने देते थे ना, ऐसा होने लगता अब तक तो। बल्कि हो सकता है हो भी गया होगा, कहीं कहीं छुपे हुए हो भी गया होगा, तो अभी तक मालूम नहीं हुआ वो बात के लिए काजी वुजू बना रहा है। इसके चाहने वाले सब तरफ खड़े हैं, वुजू का पानी अपने हाथों में ले लेके मुंह पे मल रहा है। वो वीडियो तो बना के रखेंगे, वो मरने के बाद में बराबर निकालेंगे एक एक वीडियो उनकी। अरे वो तो बहुत, ये समझ लो बरेलवियों को इतना पैसा खिला रहा, ज़कात सबका खैरात करके इन बरेलवियों का मुंह बंद कर दिया। इससे 20% बरेली तो इसके यानी 50% तो इसके खिलाफ है। थोड़े बहुत मुआफिक जो बरेलवी है ना वो इसको पैसा दे रहा है उन बरेलवियों को। वो बरेलवियों के दिल मुर्दार हो गए, मरदूद हो गए वो बरेलवी। मैं कह रहा हूँ वो फाजिल बरेलवी का मानने वाला है ही नहीं जो इलियास काजी की पूरी हिमायत करता है। इसलिए कि इसने कितनी गुस्ताखियां की भाई, इनको देवबंदियों की दिखती है, इलियास काजी की देखो ना गुस्ताखियां। सलाम का ऐसे मजाक बनाया, फैजान सुन्नत में लिखा 31 में सफ़े 31 में कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े और ये बैठा हुआ है खाने काबा में, और यही बात देवबंदी लिख देता। वो भी सही बात है। अगर यही देवबंदी लिख देता तो उसको काफिर बनाए थे बरेलवी अब तक। बिल्कुल। और अब तक जो है कि इन लोगों ने बरेलवियों ने जबान इसके बारे में खामोश है कि कुछ बरेलवी बोल रहे हैं लेकिन ज्यादातर खामोश। अब बरेलवियों में शायद ये प्रोपेगेंडा चल रहा है कि हमारा आदमी जो अल्लाह हज़रत का नाम ले वो कुछ भी करे हमें उसे मुसलमान मानना, लेकिन देवबंदी को नहीं मानना। लो ये कौन सा ईमान है तुम्हारा कि कोई कुछ भी करे, गुस्ताखियां करे तो उसे तुम गले लगाओ। इलियास काजी ने लिखा है कि लाडी के कब्रिस्तान में जितने लोग थे सफा 27 सबकी बख्शिश हो गई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिसको दीदार हुआ उसकी बख्शिश नहीं हुई। ये लिखा साहब फैजान सुन्नत का मेरे पास मौजूद है। और यही अगर देवबंदी लिख देता तो उसे काफिर बनाते बरेलवी लोग। तो बहुत अच्छा लगा। हजरत क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद आसिफ खान है। मैं रेलवे में सर्विस करता हूँ। अरे वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैं अभी ड्यूटी जाने का वक्त होगा, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, फिर मिलेंगे अपन इंशाल्लाह। बाद में बात कर लेना, मैं आपको चैनल पे डलवा दूँ आप कहें तो। डाल दो आप, उसमें से अच्छे पॉइंट जो है हमारे नहीं वो सभी डल जाएगी होते घटी, इसमें कोई बात नहीं है ऐसी। हाँ अच्छा चलेगा। ऐसी बातें करिए कि आवाम का दिल खुल जाए, ठीक है ना? ठीक है चलेगा। कोई बात हो तो बता देना, करवा देंगे। बिल्कुल चलेगा, शुक्रिया।